Dear student, welcome back to Dr. Shrikant Pharmacy channel. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest pharmacy video. So today I came with a topic that is methods of inventory control, which is already explained in the previous video. What are the methods are available for find outing the inventory system in a retail store or wholesale or the manufacturer. So in the last video I explained in detail what is a perpetual inventory control system. In this video we are explaining the ABC method of inventory control system, that is nothing but always better control, and the second method is a VED analysis, that is a vital, essential, desirable method. So in this class what is these two methods, what are its advantages, we are going to discuss. So always better control method, it is based on the cost wise. ये जो always better control method है ना, cost के ऊपर inventory divide करते हैं इसको. So here the mainly in the manufacturer level or in the wholesale level or retailer level, material are categorized into three categories. That is one is investment with respect to, another one is goods respect to. These materials are classified into three categories. So that is why it is called as A stands for always, B stands for better and C stands for control system. ABC analysis. So here A are nothing but they are very costly item, very costly item, and B stands for the medium cost wise, and C is a cheaper material. So whenever you are making the inventory successful means your investment 50% of cost is spended or invested towards the costlier item, that is A. Okay, so you will get the goods only the 10 to 20% only. So another the B is called as a better wala, and it's the medium cost. So 30% of your investment should be placed on the materials like a B, and you will get the 20 to 30% of a goods. And similarly 20% of investment, if you are invested in inventory, you will get the cheaper product around 70 to 80%. So means is that here this is a 50% of amount, means 100 rupees there, 50 rupees you are spending for the costly drug, and 30 rupees you are spending for the medium cost drugs, and 20 rupees you are spending for the cheaper goods. So cheaper goods will get the more quantity with respect to the investment. For example, 20% of your investment invested means you are getting around 70 to 80% of goods, because they are very less cost, hence you are getting that. But you have to be concentrate on the investment amount over the first one, that is A, because these are the very costlier, you have to be control the properly so that you will be succeed in. So medium is there, medium control is required, and less is there, less control required. So ये मेथड से हमको ये मालूम हो जाता हमारा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना हम लोग, वो इन्वेस्टमेंट कैसा करना बोल के एक तीन कैटेगरी का एक कॉस्ट वाइज बनाते हैं. जैसे समझ लीजिए ए वाला बहुत ही कॉस्टली है, बी वाला उसका कॉस्ट है ना मीडियम रहता, सी वाला बहुत ही चीप रहता. हमारा पास जो इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट रहता ना, 50% उसका अमाउंट जो ये वाला को हम लोग डालना, और 30% ऑफ हमारा जो अमाउंट रहता ना बी वाला कैटेगरी वालों को डालना. 20% जो अमाउंट रहता ना वो सी कैटेगरी का टाइप का मेडिसिन को डाले तो हम लोग प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं. अगर समझ लीजिए आप 50% दैट इज सी वाला को डाल दिया तो आपका दुकान भर जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना वो नहीं मिल जाता. इसलिए हम लोग इन्वेस्ट करते वक्त, जैसे समझ लीजिए ये वाला है, ये जो चीज़ है ना आपको 50% इन्वेस्टमेंट करे तो आपको मिलेगा 10 to 20% ऑफ स्टॉक ओनली. So at the time you have to make the greater control towards the such type of material. 20 to 30% मिल जाता है मीडियम कॉस्ट वाला, और 70 to 80% लेस कॉस्ट वाला मिल जाता है. ये बोलते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल. इससे हमारे को जानकारी ये मिलता है अगर बहुत ही कॉस्टली रहे तो हमारा जो अमाउंट है ना उसको कितना डालना, मीडियम कॉस्ट रहे तो हमको कितना डालना, अगर चीपर रहे तो कितना इन्वेस्ट करे तो कितना आता बोल के मालूम होता है. इससे हम लोग क्या हो जाता है, इन्वेंटरी कंट्रोल अच्छी तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं. व्हाट आर दिस एडवांटेजेस ऑफ ABC मेथड? बेटर कंट्रोल ओवर द कॉस्टली आइटम, जिससे हम लोग ये जो देख रहे हैं ना ग्राफ, ये जो पिक्चर से आपको मालूम हो रहा है कॉस्टली आइटम्स
कितना अमाउंट डालना बोलने का। और रिड्यूसिंग द स्टोरेज कॉस्ट, हम लोग अननेसेसरी स्टोरेज करना ज़रूरत नहीं जैसे कॉस्टली ड्रग। डेवलप द साइंटिफिक कंट्रोलिंग मेथड, ये जो मेथड करने से क्या हो जाता है, एक सिस्टमेटिक हम लोगों को मेथड स्टार्ट हो जाता है। एंड इन दिस वे व्हाट वी आर गेटिंग दी, बहुत ही अच्छा हम लोग इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट वी विल गोइंग फॉर द वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। वाइटल मतलब समझ लीजिए, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू द यूज ऑफ द ड्रग। ओके, फॉर एग्जांपल यूजफुल फॉर द ड्रग्स, मतलब कौन सा ड्रग कैसा है उसके हिसाब से हम लोग ये कर रहे। वो फर्स्ट में ऑलवेज बेटर कंट्रोल में हम लोग कॉस्ट के बारे में देखे लेकिन उसके यूज़ के बारे में नहीं देखे, यहाँ पे यूज़ के बारे में देख रहे। कंज्यूमर गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, ये जो रहता है ना, इसका यूजेस कितना इम्पोर्टेंट है, उसका यूजेस इम्पोर्टेंट, उसका कास्ट वाइज हम लोग नहीं देखते। सो बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ गुड्स इन और फार्मास्यूटिकल फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। समझ लीजिए वी स्टैंड फॉर वाइटल, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, मतलब जो कंपाउंड रहता है वी में आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, वो नहीं रहता तो बहुत नुकसान होता है। समझ लीजिए एक स्नेक्स बाइट रहता है ना, एंटी एनम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइफ सेविंग जो ड्रग्स बोलते हैं ना हम लोग, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट रहता है, वो बहुत ज़रूरी है स्टॉक मेंटेन करने के लिए। उसका कॉस्ट बहुत कम रहता है लेकिन वो रहना, वो रहे तो लाइफ सेव कर सकता। सो स्नेक बाइटिंग, एंटी वेनम्स एज एन एग्जाम्पल। ई इज एसेंशियल मीन्स वो भी ज़रूरी है लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, जैसे नई लाइफ सेविंग, जैसे एंटी वेनम जैसे नहीं रहता, कॉमनली एंटीबायोटिक अदर ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो जैसा रहता है। डी स्टैंड फॉर डिज़ायरेबल, नेसेसरी। एग्जांपल आपको मालूम है, बूस्ट रहता है, मल्टीविटामिन्स रहता है, जैसे हार्लिक्स रहता है, अगर वो लिए तो भी चलेगा, नहीं लिए तो भी चलेगा, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं डिज़ायरेबल। यहाँ पे क्या है, वाइटल और एसेंशियल आप अगर अच्छी तरह से मैनेज कर लिए तो सो आपका जो इन्वेंट्री रहता है आपको सेटिस्फाइड रहता है। ओके, मैं समझता हूँ ये क्लास से आपको बहुत ही सरल से what is an always better control method and what is an vital essential desirable method. So in the next class we are discussing the remaining methods also. Thank you very much for watching this video.